Hello friends, I am Professor Ravikiran Suryavanshi. So I am taking today's sessions on loop. In previous 2 days, we have completed the basics of C. Am I audible? Please reply on. Yes, sir. Okay, thank you. So we quickly recap the previous 2 sessions. So first day session was introduction to C, and second day session was conditional statement. In introduction to C, we learned about all the basics things: is formatted input, output, what are the different data types, what is variable, identifier, keywords, then what is the structure of program, and we had done a simple program. After that, we have learned yesterday about the conditional statements. So conditional statement means if we are choosing either this or this one, that time we are using the conditional statement. So how many types of conditional statement we have learned about? A conditional statement, that is if and switch, multiple choice options, and only choices, No, sir. or Multiple only choice. two choice. Hello, In sir. Hello. yes, yes, ma'am. मल्टीपल चॉइस स्विच स्टेटमेंट नहीं Yes, हुआ ma'am. Tell कल, me. क्योंकि देयर इज प्रॉब्लम विद द लाइट. मेरे यहाँ पे लाइट गई थी तो वो हो नहीं पाया था. इफ एंड इफ एल्स उतना ही पार्ट कवर हुआ कल. Okay, okay, not an issue. So we'll get a quick idea about how the switch is working. Yesterday you have covered, means all of you learned about a if and if else. These are the two conditional statement. In the conditional statement, we are choosing or we are formatting. In Paint, I'll show you. In conditional statement, what we are doing, we are giving any scenario. In that particular scenario, we are choosing either syntax for if. We'll see a syntax for if we are taking a condition, and if this condition is true, then we are going for body of if part. Okay, so normally conditional statement in नॉर्मली हम क्या करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में कि अगर कोई सिचुएशन करेक्ट हुई तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कॉलेज अटेंड करूंगा. अगर मुझे बाइक मिली तो ही मैं एक वर्क डन करूंगा. ऐसे मीन्स कंडीशन, वी आर चेकिंग द कंडीशन. इफ कंडीशन इज ट्रू, देन वी आर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. मीन्स सिंगल कंडीशन and single body of statement. And if we want to check the condition, either or condition means if the marks is below 35, then it's fail. If 35 or above, it's in pass. So in that case we are using the else statement. और else को condition नहीं होती है. Why we are not giving the condition to the else? Because else already जो condition हमने if में दी है, that condition satisfies, then it will go to the body of if, otherwise it will execute the body of else statement. Yeah, this is an if else, means we are having only two options, either for this side or that side. Okay, now if we have require a multiple choice, means हम कंसिडर करो कि ग्रेड कैलकुलेट करें. पासिंग का परसेंटेज तो इसमें हो सकता है कि 35 के बिलो है तो फेल है, या 35 और 35 के आगे मार्क्स है तो पास है. पर मुझे अगर ग्रेड कैलकुलेट करना है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, या मेरे तीन तीन ऑप्शन है मेरे पास, या चार ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल, हम एटीएम का मैडम ने एग्जांपल लिया होगा. एटीएम के एग्जांपल में क्या करते हैं, हमारे पास मेनू ड्रिवन प्रोग्राम रहता है कि इन दैट मेनू वी हैव टू चूज आइदर बैलेंस चेक करना है, विड्रॉल करना है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, वेरियस ऑप्शंस होते हैं. तो उस ऑप्शन से हम एक चूज करते हैं, या फिर हम कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं. तो आईवीआर पे हमें आईवीआर रिकॉर्डेड मैसेज होता है कि फॉर इंग्लिश
press 1. For Marathi, press 2. For Hindi, press 3. For any another language, press 4. Means we are giving the choice. So ये multiple choice है, उस choice के हिसाब से हमारा program execution होता है. For that purpose, we are using switch statement. Okay, in switch statement we are giving choice. Okay, अब इस choice पे हम different cases यहाँ पे execute करते हैं. First we'll consider केस नंबर 1 होगा, यहाँ पे कोलन देना है और यहाँ पे बॉडी रहेगी केस नंबर 1 की और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे. सेम वे केस 2, अगेन बॉडी रहेगी. सेम वे केस नंबर 3 एंड अगेन बॉडी रहेगी. और एक स्पेशल केस होती है, डिफॉल्ट बोलते हैं उसको. डिफॉल्ट मीन्स अगर हमारे यहाँ पे आईवीआर पे ऑप्शन आया कि फॉर 1 प्रेस, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, फॉर मराठी प्रेस 2, फॉर हिंदी प्रेस 3, और हमने गलती से 2 प्रेस करते समय निचले वाला बटन 5 प्रेस हो गया, तो क्या होता है, तो 5 पे हमारा इनपुट गलत हो गया. तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में से कोई भी इनपुट नहीं मिला तो इट विल डायरेक्टली गो टू द डिफॉल्ट स्टेटमेंट. और वो आईवीआर से मैसेज क्या मिलता है हमें, यू हैव चूज रॉन्ग आंसर. और ये आईवीआर के ऑप्शन में ये मेन्यू अवेलेबल नहीं है, गिव द प्रॉपर इनपुट. क्लियर, इट्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट. क्लियर द आइडिया हाउ द स्विच इज वर्किंग एंड व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ स्विच. ओके, नाउ अब ये फॉर्मेट कैसे है, स्विच एक कीवर्ड है, यहाँ पे हम चॉइस देते हैं. चॉइस जो भी होगा उसी केस में जाएगा. मीन चॉइस हमारे यहाँ पे 1 रहा तो ये केस नंबर 1 में जाएगा और ये एग्जीक्यूट करते रहेगा. तो चॉइस नंबर 1 ही एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वो पर्टिकुलर लूप ब्रेक करता है. सो हर एक केस के बाद ब्रेक आएगा. So break will break that particular loop after the execution of body. Clear? Now we'll move to the next part, that is for today's main topic. Now looping statements. Ab conditional statement and looping statement, these are the different statements. In conditional statement we are choosing or we are checking a particular condition, and depends on that condition, means either condition true or false, we are executing some parts of that program. means either pass वाला block execute होगा, if वाला block execute होगा, या else वाला block execute होगा. switch case में भी ऐसे है, बहुत सारे cases है मेरे पास, 1 2 3 4 and default. we are having 4 blocks but we are executing only one. either case 1 execute होगा, case 2 execute होगा, case 3 execute होगा, या फिर default execute होगा. मगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां पे मुझे पूरा ब्लॉक नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, सो उसको बोलते हैं ब्लॉक, उसको बोलते हैं लूप. फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि एक सिंपल एग्जांपल में मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट नंबर 1 to 10. सो विल राइट ए सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10. अब बहुत सारे वेज हो सकते हैं नंबर 1 to 10 प्रिंट करने के लिए. तो सिंपलेस्ट वे आई विल गेट, अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल यूज 1. ओके, ये प्रिंट करेगा 1, देन 2 3 4, कंसिडर करो 5 तक प्रिंट करना है मुझे, 5, और इसको रन किया मैंने, आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5. क्लियर? सो सी द आउटपुट, it's 1 2 3 4 5. executing the state number of statements means if I want to execute or if I want to print 1 to 5, then I have to write the 5 different printf statement. अब ये सिंपल एक के लिए हो गया,
कंसिडर करो कि मुझे स्टूडेंट डेटाबेस में उसका रोल नंबर प्रिंट करना है, सीरियल नंबर प्रिंट करना है, रोल नंबर प्रिंट करना है, नाम प्रिंट करना है, एड्रेस चाहिए, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ऑल these details I required. So these many of details we are having, that many of details we have to use printf and scanf statement n number of times. So doing the same task for n number of statements, we can use the loop. So loop क्या करेगा, वही स्टेटमेंट जितने तक मुझे चाहिए उतने तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्लियर? जितनी बार मुझे चाहिए उतनी बार मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्लियर? लूप क्या होता है? अब हमने आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के टॉपिक में हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला था। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने ऑब्जर्व किया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने डाला था कि हम टीवी सीरियल में देखते हैं कि फाइटिंग वाला सीन होता है या कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, वो सीन होता है, तो उसका फेस बार बार 3-4 बार वही मूव होता रहता है। तो क्या वो शूटिंग में उस तरह से हुआ होगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर उसको 3-4 बार ऐसे फेस कंटिन्यूअसली मूव करना है तो उसकी नेक में मोच आ सकती है, ऐसे नहीं होता। तो क्या करते, वो एक ही सीन रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली वही पार्ट लूप में डाल देते हैं। सो फॉर द 2, 3 और 5 सेकेंड पार्ट इट इज रिपीटिंग बाय यूजिंग ए लूप। क्लियर? अगर कंसिडर करो कि अभी तो ये सिचुएशन नहीं है कि कहीं पे अगर पानी भरना है हमें, तो पानी भरने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, जो भी बर्तन है हमारे पास लेके जाते हैं नल के पास, उसको भरने देते हैं, वापस आके टंकी में डाल देते हैं। बर्तन जो खाली है उसको लेके जाते हैं, फिर भरते हैं, टंकी में डाल देते हैं, फिर जाते हैं, भरते हैं, टंकी में डाल देते हैं। कब तक ये प्रोसेस करती है? जब तक टंकी फुल नहीं हो जाती। तो सेम स्टेटमेंट में रिपीटेडली कर रहा हूं ना, तो ईच एंड एवरी टाइम मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली होता रहेगा। So same way we are using the loop. If I want to do a same task for n number of times, then I'll use the loop. So loop में सीन की फंक्शनैलिटी में हमारे पास 3 टाइप के लूप है। फर्स्ट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फर्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप, सेकेंड विल बी व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब लूप के ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली देखे जाए तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकेंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर? कौन से 2 टाइप होते हैं? वन इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकेंड इज exit control loop. Now why the name is given as entry control and exit control? Entry control means the loop is controlled at the entry point. मीन्स वो पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है एंड देन डिसाइड करता है कि मुझे लूप रन करना है या नहीं। ये हो गए एंट्री कंट्रोल लूप। और एग्जिट कंट्रोल में क्या करता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, वट एवर इट इज, पहले एग्जीक्यूट करता है और बाद में सोचता है कि अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। सो फ्रॉम दिस 3 टाइप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, these are the 2 entry control loops and do while loop is an exit control loop. Clear? So we'll get the idea first of the for loop. Clear? So for loop में क्या होता है, अब तीनों भी लूप का काम ही एक ही है। जो स्टेटमेंट्स है वो रिपीटेडली टिल मेरी एक कंडीशन मैच नहीं होती तब तक मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। अब उसके फर्स्ट सिंटैक्स देते कि फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास कीवर्ड है फॉर। फर्स्ट द कीवर्ड इज फॉर, देन ब्रैकेट में ओपनिंग ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में मेरे 3 पोर्शंस है। वन है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज checking the condition and increment and decrement, and after the initialization it will check to the condition. If condition is true it will execute the block, it is increment or decrement, then it will go to the again checking the condition. मीन्स फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में जब भी ऊपर वाले जो भी स्टेटमेंट है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से जब फॉर लूप का एग्जीक्यूट होता है तो इनिशियलाइजेशन फॉर लूप एग्जीक्यूशन में एक ही बार होगा। एक बार इनिशियलाइजेशन कर लिया कि वो सेकेंड स्टेप में जाता है, कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट
या स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट अंदर है वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? कब करेगा? इफ द कंडीशन इज ट्रू, then after the execution of program it will not go further for the execution, it will go to the increment and decrement part of that particular variable. After the increment and decrement again it will go to the condition. अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, if condition is true again it is executing the block of statement, again it will go to the increment decrement, check the condition, condition is true, increment decrement, again condition is to execute the block, again it will increment or decrement, then checking the condition, if condition is true then it will execute the block of statements. Means initialization कितने टाइम हो रहा है, कितने टाइम इनिशियलाइज हो रहा है? Yes, reply on chat box. How many times the initialization will done? Initialization will done only once at the starting of for loop. Okay, after the starting of for loop it will checking the condition, executing the condition statement execute होने के बाद अगर condition true है तो पहले वो execute करेगा, block of statement execute करेगा, then it will increment or decrement, checking condition, increment or decrement, checking condition, increment or decrement, checking the condition. This is an syntax. अब ये फ्लो चार्ट से समझते हैं कि फ्लो कैसे रहता है। स्टार्ट हो गया, पहले इनिशियलाइज करता है। ओके, फर्स्ट इट विल इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होगा? ओके, आफ्टर द इनिशियलाइजेशन इट विल गो टू द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। अपडेटिंग द काउंटर इज नथिंग बट it is incrementing or decrementing and checking the condition. If condition is true, executing the block of statement, incrementing the counter, again checking the condition. If the condition is fail, it will go to the fails and executing the further steps. Clear? Flow of statements. Clear the flow of flowchart? Flow of for loop. Now we'll take a real-time example. Consider I want to print my name for 10 times. ओके, सो मेरे पास सिंटेक्स कैसे है? फिर से एक बार यहाँ पे प्रोग्राम पहले सिंटेक्स एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर आपको मेन प्रॉब्लम में लेके जाता हूँ। ओके, फॉर अब इनिशियलाइजेशन होता क्या है? इनिशियलाइजेशन मीन्स वन वेरिएबल या वन काउंटर चाहिए जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता रहेगा। सो आई गेट एन इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। ओके, i लेता हूं मैं एंड इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू 0 डाल देता हूं, या फिर 1 या कोई भी वैल्यू डाल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो i फिर से मुझे इनिशियलाइज करना है, i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया और ऊपर से यहाँ पे किया तो भी चलता है, इट्स नॉट एन इशू। ओके, i को 0 से सेट कर दिया, देन मैं कंडीशन चेक करूंगा कि i इज लेस देन। अब मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, या 1 लेता हूँ, आपको समझने के लिए अच्छा होगा, 1 लेता हूँ। अब मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? यह स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट करना है, कंसीडर करो। सो i इज लेस देन 6 है, तब तक एग्जीक्यूट करते रहो। ओके, सो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, इसमें मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट द नेम ऑफ माई कॉलेज, printf ट्रिनिटी पुणे। ओके ओके, सो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अब i को डिफाइन किया है हमने, देन i को इनिशियलाइज किया, i की वैल्यू 1 है। अब i लेस देन 1 लेस देन 6 है, लेस देन 6 है ना i? यस, 1 इज लेस देन 6, सो इट इज प्रिंटिंग ट्रिनिटी पुणे। ओके, देन इट विल गो टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मुझे 6 बार एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सो आई गेट i प्लस प्लस। i की वैल्यू अब क्या हो गई? नाउ द i's वैल्यू इज 2। क्लियर? सो 2 is less than 6, yes, so it will increment Trinity Pune. Again we are going to the increment, now i's value is 3, 3 is less than 6, Trinity Pune 3 टाइम हुआ, then I increment 4th हो गया, कंडीशन ट्रू है, 4 is less than 6, then again it is executing the Trinity Pune। अब अगेन इंक्रीमेंट किया 5 इंक्रीमेंट करने के बाद 5 is less than 6, yes,
Again it is executing the Trinity Pune. Now it is incrementing 6. अब 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फेल हो गई तो नीचे आ गया. क्लियर? इट्स एन एग्जीक्यूशन पार्ट. ओके, ऐसे एग्जीक्यूशन होगा. तो यही कोड मैं हमारे प्रोग्राम में डाल देता हूँ. Hello, sir. यस. Sir, can you explain me the I plus plus वाला part again, please? ओके, सो आई प्लस प्लस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट. अब हमें कितनी बार 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है ना. अगर कंसिडर करो कि हमने आई प्लस प्लस ही नहीं लिया. अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ. फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइजेशन हो गया. ओके, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, हो गया. अब आई की वैल्यू क्या है? 1 लेस देन 6. कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अंदर जाएगा. देन इट विल प्रिंट ट्रिनिटी पुणे. और ट्रिनिटी पुणे के बाद ये एग्जीक्यूशन सेमीकोलन के बाद यहां से जाएगा फिर से ऊपर और ये करेगा इंक्रीमेंट. अब आई के इंक्रीमेंट मींस आई की वैल्यू क्या है इनिशियली? इट्स 1. ओके, सो आई इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1. सो इसका ही मतलब क्या होता है? आई प्लस प्लस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. आई को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं. तो सेम वे अगर आई माइनस माइनस हुआ तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई माइनस 1. आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2. अब वैल्यू 2 हो गई. सेकेंड टाइम मेरे पास ये अब वैल्यू क्या रहेगी? 2 इज लेस देन 6. So condition is true. Again it is displaying the Trinity Pune. Going to the next part. Now i's value is 3. So this will time the condition will be 3 is less than 6. Condition true. तीसरी बार एग्जीक्यूट हो गया ये. अब फिर से i की वैल्यू 4 हो जाएगी. 4 इज लेस देन 6. नेक्स्ट टाइम होगी 5 इज लेस देन 6. 5 बार एग्जीक्यूट हो गया. अब की बार कंडीशन रहेगी 6 is less than 6. So after the 6 is less than 6, it will fail the condition or condition is not true. So it is not going into the block of for loop. It is exit from the loop. Clear? Now we'll see the actual program. So यहाँ पे हम एक initialize करते हैं integer I. Okay. Then I'll use for में प्राइमरी इनिशियलाइजेशन हो गया. i is equals to 0. Then I is less than 6. Then I plus plus. And I want to write a code as print okay. So I'll execute this program. sorry, एक सेमीकोलन रह गया यहाँ पे. Okay, so see the output. Okay, for the better visuality I'll use /n. See this, Trinity College of Engineering Pune, 1 time, 2 time, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why it's displaying for 6 times? Because I have initialized the value with 0. If we are getting the 1, it will be 5 times. Clear? Trinity College of Engineering, 1, 2, 3, 4, 5. Clear how the loop is working? तो डिबग करके देखते हैं.
Okay, clear the for loop, how the for loop is executing, clear or not? यस, फॉर लूप कैसे वर्क होता है पता चला? स्क्रीन विजिबल है फॉर लूप वाली? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाइल लूप. कुछ डाउट है फॉर लूप में? फॉर लूप में कुछ डाउट है? वन सेकेंड. ओके, कुछ डाउट है? अब टाइप करो, किसी को डाउट है तो. नहीं है तो व्हाइल लूप की तरफ मूव करें हम. ओके, सो व्हाइल लूप इज अगेन एन एंट्री कंट्रोल लूप. ओके, so it's again an entry control loop. So entry control loop means entry पे ही हम condition check करते हैं. So we'll see the format of while loop. While the condition, and in that condition we are checking the body of statement. While we are checking the condition, and if the condition is true, body of while loop. क्लियर? सो आपने देखा होगा कि फॉर लूप में हमें तीन कंडीशंस थे. मींस इनिशियलाइजेशन पार्ट था, देन कंडीशन चेकिंग था, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था. बट यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दिख रही है, तो इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो इनिशियलाइजेशन विल बी यहाँ पे ही होता है, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 या इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया इनिशियलाइजेशन. कंडीशन यहाँ पे हो गई, और बॉडी में अंदर हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी तीनों पार्ट है यहाँ पे, बट वो सेपरेट मैनर में है. क्लियर? सो दिस इज एन इनिशियलाइजेशन कंडीशन, दिस इज एन, sorry, it's an initialization, this one is condition, and third is increment decrement. सिर्फ syntax different है, we are doing the same thing. Clear? By using while loop and by using for loop, we are executing the n number of statements for we are executing the n number of statement or block of the statements for n number of times. So previous वाला जो प्रोग्राम था वही सेम प्रोग्राम हम while loop से करते हैं. तो क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया i इज इक्वल्स टू 1. फॉर लूप निकाल के मैं यहाँ पे while लूप डाल देता हूँ, while, और यहाँ पे डाल देता हूँ कंडीशन कि i इज लेस देन 6. ओके, प्रिंट तो वही करना है. प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं एंड में I'll use the i plus plus. Now the same code will be executed now. See the output. It's Trinity College of Engineering. 1 2 3 4 5. कितनी बार है? 5 times. Clear? The while loop means in a while loop
Same thing we are doing as we are done into the for loop, but just the syntax is different, while loop and for loop. And both are the while loop and for loop also, both are the checking the condition at the entry level, means entering into this loop we are checking the condition. So it's known as entry control loop. We are controlling whole or all the statements at the time of entry into the block, or at the time of entering into the loop, so that if the condition is true, it is executing the statement, otherwise it will not execute the statements. Here, can we move further? Okay, now third type of loop is do while. अब do while में एक कंडीशन करते हैं, एक चेकिंग करते हैं, एक मैं अलग सा प्रोग्राम लेता हूं यहाँ पे, इसी प्रोग्राम में लेते हैं हम एक एज है, कंसीडर करो। कहीं कहीं आप वोटिंग के लिए आपको एज की जरूरत पड़ती है, या अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन में क्या करते हैं हम, टेम्परेचर चेक करके ही अंदर छोड़ते हैं। सो चेकिंग कंडीशन है, चेकिंग। सो गेट के बाहर जाने से पहले ही सोसाइटी में अगर आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, एंड उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। सो आई विल गेट द लूप एज फर्स्ट, क्या करो, पहले एक बार ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या पहले एक बार एग्जीक्यूट कर दो, बॉडी एग्जीक्यूट कर दो। ओके, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ये व्हाइल की कंडीशन यहाँ पे रखेंगे हम। ओके, व्हाइल एंड कंडीशन, और यहाँ पे रखेंगे डू। तो फर्स्ट डू दिस एंड देन चेक कंडीशन, और देन check execute this block while this condition is true. I'm repeating once again what we are doing in previous section. We are directly checking while the condition is true, execute the block, or for the time being the condition is true, execute the block. But in do while, what we are doing, I'll give the instruction, first do this, first execute the block of statement, and then check whether we want to continue or not. Yes or no? Continue or not. So first I'll initialize I is equals to 1. Okay, I'm executing the body, and then I'll checking the condition. Okay, so we'll do one simple program as I'm getting 1, I get while here and do here. Okay, now एक मैं यहाँ पे स्कैनफ लेता हूँ और एक इनपुट लेता हूँ यूजर से, printf s1 to continue, s2 to stop. ओके, अब क्या करना है, जब तक एक इनपुट, इसको मैं चॉइस वेरिएबल लेता हूँ, इस चॉइस वेरिएबल में आई विल गेट scanf %d कॉमा चॉइस। ओके, और सॉरी, while choice is equals to 1। जब तक चॉइस 1 है तब तक कंटिन्यू करो, अदरवाइज चॉइस प्रेस एनी की एनी अदर नंबर टू स्टॉप। ओके, ऐसे प्रोग्राम है। अब मैंने यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट किया है, मैंने प्रोग्राम लिखा है कि
फर्स्ट डू दिस, फर्स्ट प्रिंट द ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाम प्रिंट करो। उसके बाद यूजर से इनपुट ले लो कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। कंटिन्यू करने के लिए आपको 1 प्रेस करना है, या एग्जिट करने के लिए 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर दे दो। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। कहाँ पे क्या मिस हो गया, एंड यहाँ पे है। अब क्या हो गया, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक बार प्रिंट हो गया। अब मैंने 1 प्रिंट किया, फिर से ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1 प्रिंट किया, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 4 प्रिंट किया, it will stop the execution. So this is a program which is getting or executing the block of statement first and then checking the condition. Got the idea how the do while is working? So do while is working, first do it whatever it is and then continue the if condition is true. Clear do while? And you will get idea why the do while is now exit control loop. Yes, do this part, okay, and after the completion of this part, check the condition. So it's first executing the block of statement and then checking the condition either to continue or not. It's an do while condition. So first we are learning about a looping statement. So looping statement is nothing but we are executing or number of statement for n number of time. Repeating thing. We are having total 3 types of loop. First one is for loop, while loop, and do while loop. Broadly, we are having 2 types: entry control loop and exit control loop. In entry control, for loop and while loop, these are the 2 entry control loop, and do while is an exit control loop. Syntax for the for loop is for statement. In that, we are giving the 3 different criteria: first initialization, condition, then increment, decrement. So once we have initialized, it will check the condition is true, executing the block of statement. Again it is incrementing or decrement, executing the statement, again checking the condition is true, it is executing the block of statement. This process is continued till the condition is true. Same way for a while loop, while statement is checking the condition and it is executing the block of statement while the condition is true. And in do, first we are doing the number of tasks and then will continue if the condition is true. This is an execution of a statements. Clear? Now we are doing some practical work here. ओके अब प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है कि मैं सिंपल एक प्रॉब्लम दूंगा आपको। तो पहले वो आपको फॉर लूप से करना है, देन व्हाइल लूप से करना है, और मैं क्या करूंगा स्क्रीन से आपको मॉनिटर करता रहूंगा। जब भी आपका प्रोग्राम, सभी लोगों ने आपने क्या करना है, आप स्क्रीन प्रेजेंट करनी है। स्क्रीन प्रेजेंट करने के बाद जो भी आप मोबाइल पे कर रहे हो यहाँ पे मुझे दिखेगा। सो आई वॉच ईच एंड एवरी वंस प्रोग्राम कि उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। क्लियर? सो अभी मुझे क्या करना है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, ओके, बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, आपको आपका नाम प्रिंट करना है
बाय यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप यूज करने के लिए आप क्या करो, पहले तो आपको ऑनलाइन टर्मिनल, आपके पास जो भी ब्राउजर है वहां पे जाओ एंड सी कंपाइलर, गूगल पे आप सर्च करो। गूगल पे सी कंपाइलर सर्च करने के बाद बहुत सारे कंपाइलर आते हैं, वहां पे ऑनलाइन जीडीबी सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करो। इसको ओपन करने के बाद ये टर्मिनल आएगा आपको, इसमें से ये ऊपर वाले लाइंस अगर रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल दो, ये प्रोग्राम है। अब सिर्फ यहाँ पे आपको आपका कोड टाइप करना है, जिसमें आपका नाम 10 बार मुझे प्रिंटेड चाहिए। क्लियर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? मैंने क्या किया था, 5 टाइम्स मेरे कॉलेज का नाम प्रिंट किया था, अब आपको क्या करना है, 10 टाइम्स आपका नाम प्रिंट करना है। ओके, और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपकी स्क्रीन आप मैं दूसरा एक प्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। ओके, अब मेरे फोन की स्क्रीन आपको विजिबल दिख रही होगी, विजिबल है? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स है, ऊपर की साइड में 3 डॉट्स है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो ये स्विच कैमरा टर्न ये है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे स्टॉप प्रेजेंटिंग दिख रहा है आपको, ये वाला थर्ड ऑप्शन। ओके, तो वहां पे आपको प्रेजेंट दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट यूर स्क्रीन और प्रेजेंट यूर स्क्रीन। सो क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल की स्क्रीन मुझे दिखेगी। तो वहां पे जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, 5-10 मिनट का टाइम लेंगे हम, 10 मिनट में आपका जब टाइम कंप्लीट हो जाए तो आप चैट बॉक्स में डाल दो कि सर प्लीज रिव्यू माई प्रोग्राम, या कुछ गलत है या कुछ एरर आ रहे हैं, देन आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्ट वी आर डूइंग राइटिंग। ओके, रिपीट वंस अगेन। ओके, क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करो आप, आपके मोबाइल पे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर है उसमें जाओ, आप उस ब्राउजर में सी कंपाइलर सर्च करो। ओके, उस ब्राउजर में सी, सुचिता मैम अगर हो आप तो एक बार लिंक डाल सकते हो चैट बॉक्स में। हाँ हाँ ठीक है। ओके मैम, चैट बॉक्स में लिंक डालते हैं, उस लिंक पे जाओ, डायरेक्टली वो ब्राउजर में आपके ओपन हो जाएगा। सी कंपाइलर इस टाइप का टर्मिनल आपके कंपाइलर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। आपका नाम प्रिंट करना है, कितने बार प्रिंट होना चाहिए, वो 10 बार, बाय यूजिंग फॉर लूप। मींस प्रिंट स्टेटमेंट आपका एक बार ही आएगा, बट डिस्प्ले होते समय या आउटपुट में आपका नाम 10 बार देखेगा। जैसे मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को 5 बार प्रिंट किया था, आपको आपका नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो जस्ट इस कंपाइलर, यहाँ पे जाओ, आपका कोड यहाँ पे प्रिंट एफ है, यहाँ पे आपका कोड, आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना है, एंड उस फॉर लूप में एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट रहेगा। ओके, सो दैट प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल रिपीट द सेम योर नेम फॉर 10 टाइम्स। ओके, और ये आपका कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करना है, आपको आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है। यहाँ पे आप मोबाइल के जहाँ पे सीसी दिखा है ऊपर यहाँ पे, ओके, तो इस सीसी के पास में आपने जाके यहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन करनी है। चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, सर आई हैव डन इट, या कुछ एरर आ रहा है तो भी डालो कि सर आई हैव प्रॉब्लम, मैं आपका स्क्रीन यहाँ पे देख सकता हूँ, वहां पे देख के मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? मैम ने लिंक शेयर की है, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको ऑनलाइन टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आरजे, यू हैव टू प्रिंट योर ओन नेम। आपका सिर्फ गुड नेम प्रिंट करो, बस उतना ही। और जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी स्क्रीन
ओके, जिसका एरर आ रहा है शायद तन्वी। तन्वी, आप आपकी स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ, आई सॉल्व द एरर। आप लैपटॉप पे हो क्या? ओके, कृष्णा, फर्स्ट विल सी द कृष्णा। कृष्णा का आउटपुट आ रहा है, गुड गुड, एग्जैक्टली कृष्णा, वेल डन। आपको प्रेजेंट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा ना? एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। आप क्या करो, जब भी आप मोबाइल पे कर रहे हो तो सीसी के पास 3 डॉट्स है, वहां पे जाके प्रेजेंट करना है। ओके आरजे, डन, वेरी नाइस। एरर किसी को आ रहा है? जिसको एरर आ रहा है वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करो। सर, हेलो, यस मैम। आई वांट टू अनाउंस समथिंग। या मैम। स्टूडेंट, कल मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिकल्स दिए थे, तुम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखे हैं क्या वो? यस, नो? प्रोग्राम शेयर किए थे, you have to execute all these program at your end, so you will get the clear idea, है ना? और किसी ने नहीं किया एग्जीक्यूट? ओके। एक्चुअली वन थिंग इज देयर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग कैसे है कि टीचिंग का पार्ट रहता है 30% और प्रैक्टिस का पार्ट रहता है 70%। टीचिंग हम 30% से ही आपको आइडिया दे सकते हैं, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ड्राइविंग जैसे होता है, ड्राइविंग में जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको कितने गाइड कर सकता है? 30% की गियर कैसे डालना है, स्टेयरिंग कैसे, लाइट कैसे है, हॉर्न कैसे है, स्विच कैसे ऑन करना है। बट जब एक्चुअली आप ड्राइव करोगे ना, तभी ही आप उसमें क्लियर हो सकते हो ड्राइविंग में, या परफेक्ट हो सकते हो। वैसे ही प्रोग्रामिंग है। आप क्या होता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप हैंड्स ऑन पाओगे इसमें। क्लियर? ओके, किसी को एरर आ रहा है? How many times? Good. Advanced programming done by Krishna. Means Krishna is getting the user input. That is, uh, how many times you have to execute. उतने टाइम पे वो नाम प्रिंट हो रहा है, उतनी बार उसका। ओके तन्वी, आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आपका ना माइक्रोफोन स्टार्ट करके बताओ मुझे। सर मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ। लैपटॉप पे कर रहे हो ना, तो लैपटॉप पे कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? तो यहाँ पे नहीं, स्क्रीन बंद है मेरी। लैपटॉप पे कहाँ पे, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे जहाँ पे टाइम वगैरह होता है वहां पे है, देखो प्रेजेंट स्क्रीन करके, उस बटन पे क्लिक करो आप, प्रेजेंट, और वहां पे करोगे
Hello, sir. Hello. Okay. Now do the same program by using while loop. We have done this program, that is printing your name 10 times by using for loop. Now the same program we are executing by while loop. Do it now. Krishna had done. Good.